All right, Raj Verma, you can make a presentation. Yes, ma'am. Ma'am, screen is visible. Yes, yes. Pandit Jawaharlal Nehru. This is the picture of Pandit Jawaharlal Nehru. Contents: profile, highlights of life, analysis, recommendation, conclusion. Profile: full name Pandit Jawaharlal Nehru, nickname Chacha Nehru, Pandit Ji. Date of birth 14 November 1889. Parents: Swarup Rani Nehru, Motilal Nehru. Birthplace: Prayagraj, Uttar Pradesh. Profession: barrister, writer, politician. Education: Harrow School, London, Trinity College, Cambridge, Inns of Court of Law, London. Date of death 27th May 1964. Palace of Death, New Delhi, India. Place of death. Sunshine. Palace नहीं, Raj Verma. Place of death. Yes, ma'am. Palace नहीं. Place of death. Place. Place of death, New Delhi, India. Hmm. Sunshine, Scorpio. Nehru married Kamala Kaul in 1916. Their only daughter Indira was born a year later in 1917. This is a college of Nehru, and this is the school of Nehru, Harrow School. Highlights of life of India. Started the newspaper Independent. He wrote the widely read book The Glimpse of India. Took part in a non-cooperation movement. Elected president of the Allahabad Municipal Corporation. He was the main architect of non-aligned movement. Elected president, Indian National Congress. This is the wax statue of Pandit Jawaharlal Nehru. Analysis. He started the first 5-year plan in 1951. He played a key role in building modern India. He was attracted by the ideas of liberalism, socialism, and nationalism. He thinks that peace is not relationship of nation, it is the condition of mind brought about the serenity of soil. Soul. What we really are matters more than what other people think of us. This is the family picture of Pandit Jawaharlal Nehru. Recommendation. If I am at his palace, I will prefer Sardar Vallabhbhai Patel as a first Prime Minister of India. I will keep India Army well trained and armory of India up to date. I will never let India to be parted as a two different nations just on basis of religion, which eventually led to nuisance in Kashmir. Today, Pakistan is the result of this decision too. Theory must be tempered with reality by Jawaharlal Nehru. You don't change the course of history by turning off the faces of protests of the walls by Jawaharlal Nehru. The end, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, I can stop. Yeah. Yeah. Raj Verma, that was a good presentation, and it was a flow. And what have you learned, students, those who have made the presentation? What have you learned from this? क्या सीखा आपने? क्या फायदा हुआ इस प्रेजेंटेशन का जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था? तो उससे राज वर्मा, आई एम आस्किंग यू, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस? मैम, इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी प्राप्त हुई मैम। उनके बारे में जाने क्या है वो, कैसे क्या हुआ। फिर से मैम पीपीटी बनाने में और एक्साइटमेंट और मतलब इंटरेस्ट लग रहा था। पीपीटी बनाने में बहुत मन भी लगता है और उस पर कुछ प्रेजेंट करना और भी अच्छा लगता है कि आपकी ओन क्रिएटिविटी है और किस तरह से आप इसको बेहतर तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और जितनी बनाएंगे उतना आप यू विल फील गुड।
यस मैम। उसी तरह मैम से कंटेंट इतना था कि समझ में कुछ आ नहीं था, क्या लिखे क्या नहीं। कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से आप स्टोरीज का बनाइए, जो पोइट्री आपने पढ़ा है उसका बनाइए। जितनी बनाएंगे उतनी इंडल्ज करेंगे उतना ज्यादा अधिक सीखेंगे। तो पीपीटी इज अ वंडरफुल वे टू लर्न एंड प्रेजेंटेशन, wonderful way to present things. यस मैम। All right, students, those who have not switched on their camera, do so in 1 minute. So, Ma'am, hello? Yes? Somebody was saying something? कोई कुछ कह रहा था क्या? Yes, ma'am, I want to present. Who is this I? Ma'am, Huh? Okay, present. ma'am, screen is visual. Yeah, it is. All about Pandit Jawaharlal Nehru. Biography of Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India. Full name Jawaharlal Nehru, nickname Pandit Jawaharlal Nehru, date of birth 14 November 1889. Place of birth Allahabad, Uttar Pradesh. Sun sign Scorpio. Alum matter Harrow School, Trinity College, Cambridge. Family Motilal Nehru, Swarup Rani. Father, mother The Kamla word is Nehru, alma wife mater. Alma mater. Alma mater. Yes, And ma'am. now, and Allahabad now is Prayagraj. Yes, ma'am. Kamla Nehru, wife Indira Gandhi, daughter. Birth born on 14th November 1889 at Allahabad. Died on 27 May 1964 at Teen Murti Bhavan, New Delhi. He is the first Prime Minister of independent India. Educational background Trinity College, Cambridge. An honors degree in natural science under 3 years and barrister degree. Father's name Motilal Nehru, mother's name Swarup Rani Nehru. Father's photo and mother's photo. About his marriage and child. He married at the age of 12 of India and a saltwater politician, was a certificated figure in the Indian politics both before and after the independence. Jawaharlal Nehru was born into a Kashmiri Brahmin family. Kashmiri Brahmin family then to Harrow in England and later to Trinity College in Cambridge for his studies. It was the age of 22 he returned to India and practiced law with his father Motilal Nehru, also known as Chacha Nehru. He served the nation as the Prime Minister from 1947 until his death on May 27, 1964. He was also the architect of modern India. He was born great and achieved greatness by his vision, hard labor, sincerity, honesty, and great intellectual power. It was he who gave us the Intellectual powers. Intellectual का मतलब क्या होता है? क्या मैम? What is the meaning of intellectual? तो लिख सकती
आंतरिक शक्ति, Hmm. Yes, continue. hello, Continue. it was he Hello. and his father Motilal Nehru was and leader of the independence movement. He was also one of the prominent associates of the Simon Commission in 19 was afraid of change. Feels like a game of cards and it determinism the way you play it is free will. And but one feels and what one achieves. During 1930 to 1935, he was replaced. Nehru came to symbolize India on the 14th. On the day of his death, the mother in Pondicherry gave the following message: Nehru leaves his body, but his soul is one which the soul of India that lives of unity. Lives for Children's Day. eternity. Eternity, the spelling is wrong. H should not be there. Eternity, मतलब हमेशा के लिए. Okay, ma'am. Children's Day is celebrated across India to increase awareness of the rights, care, and it is celebrated on 14th November every year is as a tribute of the birthday of its first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. Children's Day called him because of his children's a lot. That's all, ma'am. Thank you so Okay. much. Okay. Good. That was good. Okay. आप लोग कैमरा ऑफ करके मत बैठा करिए. इट इज गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर यू. जितने लोग दिख रहे हैं वो प्रेजेंट है आज. बाकी तो मुझे नहीं पता आप क्लास में है भी कि नहीं. तो बाय डिफॉल्ट आप एब्सेंट हो जाएंगे. बार बार कहना नहीं पड़ा होना चाहिए ना. आपको एक बार समझ में बात नहीं आती है तो बात और है. तो रहिए फिर एब्सेंट. मैम मेरा कैमरा ऑन है बट शायद शो नहीं कर रहा है. ठीक है, वो दैट्स क्वाइट डिफरेंट. लेकिन बाकी लोग तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते ना. दे डोंट इवन रिस्पॉन्ड. अब क्लास में है नहीं है, बस अटेंडेंस के लिए आए हैं, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है. रोहित कुमार, साइमा एंड पवन, हमेशा तुम लोग का कैमरा ऑफ रहता है. दिस इज रियली बैड. Okay, let's continue with merchant of Venice, which we were doing. So I hope the screen is visible to you. We had discussed, Yes, ma'am. we had discussed about the 4 characters: Shylock, Portia, Bassanio, and Antonio. As I told you already, Shylock was a rich merchant money lender, and he was Jewish, and Portia is a rich young girl. Bassanio is a young man. He is a merchant, but he is not very rich, and he would like to marry Portia. And this is Antonio. Antonio is a rich, wealthy merchant, and he is not married. So this is a story of friendship. This is a story of cruelty also. कैसे एक इंसान कितना क्रूर हो सकता है. और दोस्ती में बसानियो है कि ही इज ऑल फॉर फ्रेंडशिप.
तो एंटोनियो एंड बसानियो आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और दोस्ती के नाम पे लोग कहते हैं ना, जान भी हाजिर है, तो सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और एंटोनियो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है अपने दोस्त के लिए। तो जैसा कहानी आप आगे बढ़ेगी तो आप जानेंगे। आई एम स्पीकिंग मोर इन हिंदी बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि कहानी क्या है। तो जैसे कैरेक्टर्स आएंगे उनके साथ साथ उनकी कहानी भी जुड़ी होती है। और अबाउट द ऑथर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर कौन है, क्या है, क्या अगेन आपका असाइनमेंट है। अब जैसे आपने लिखा जवाहरलाल नेहरू के बारे में, वैसे आप पीपीटी मत बनाइए, लेकिन जानिए जरूर कि विलियम शेक्सपियर बर्थ प्लेस क्या है, क्या क्या लिखा उन्होंने, क्यों इतने फेमस हैं ये। तो ये शार्लॉक के बारे में। शार्लॉक एक मिडिल एज्ड इंसान है और जिसकी एक बेटी है, और पेशे से वो मनी लेंडर है और काफी सूद पर पैसा लेता है, काफी हैवी इंटरेस्ट पे वो पैसा लेता है। और जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी और कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे लगभग क्रिश्चियन हैं, जो कि नहीं लाइक करते हैं शार्लॉक को। दो बात के लिए, एक तो इसलिए कि वो जूइश है, और जो उन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया था, वजह एक ये थी। और दूसरा वजह था शार्लॉक को नहीं लाइक करने का कि वो बहुत क्रूएल था। क्रूएल मतलब विकेट था, क्रूर था वो, और गरीबों से भी बहुत हैवी सूद पे पैसे लेता था वो। तो इसीलिए वो इस पूरी कहानी में सबसे जो क्रूर माना जाता है, वो पूरी कहानी चलती है इसकी क्रूएल्टी पे, कि कोई इंसान इतना भी क्रूएल कैसे हो सकता है। क्या क्या ये बाद में आप जानेंगे। और ये एंटोनियो है। चलिए शार्लॉक के बारे में बता ही देते हैं वो क्रूएल क्यों है। वो पैसा लेता है सबसे, और उन्होंने एंटोनियो से भी पैसा लिया। जैसे ये एंटोनियो है, एंटोनियो एक रिच मनी लेंडर नहीं, एक रिच बिजनेसमैन है और मर्चेंट है वो। और वो उसने शादी नहीं की है, वो क्रिश्चियन है। और जब भी सड़कों पर दिखता था शार्लॉक को, एंटोनियो और शार्लॉक जब भी मिलते थे, तो एंटोनियो उसके बारे में उसको बहुत उस पर कमेंट करता था, अपना गुस्सा जाहिर करता था, और कितनी नफरत करता है ये शार्लॉक से। ये सड़क पर जब कभी मिलते थे तो एंटोनियो और शार्लॉक में कहासुनी जरूर हो जाती थी, और बहस तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ कमेंट शार्लॉक पर ये एंटोनियो पास करता था। और एंटोनियो क्रिश्चियन है। वे बसानियो और एंटोनियो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये एंटोनियो है, और उसके बाद वाला था बसानियो। बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बसानियो भी क्रिश्चियन है, और एंटोनियो की तरह ये भी शार्लॉक को बहुत हेट करता है। और जब भी इन लोग की मित्र मंडली जब मिलती थी, तो ये लोग कभी मिलते थे सड़कों पर, तो सब मिल करके बहुत शार्लॉक को बता देते थे कि उसकी औकात क्या है। और बसानियों में सबसे खास बात ये थी कि वो पोशा को बहुत प्यार करता था। पहले तो वो पैसे के लिए गया था उसके पास, कि बहुत अमीर है वो, और शादी करना चाहता था, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत अमीर भी है। बसानियो वेंट टू बेलमोंट, एक ही कारण से जाता था वो। और पहले था कि पैसे की वजह से जाता था, बाद में उसको उससे प्यार भी हो गया था। तो ही इज इन लव विथ पोशा। जैसे कि बता दिया, बसानियो भी क्रिश्चियन है, और एंटोनियो से बहुत अच्छी दोस्ती। और एंटोनियो और बसानियो इतने क्लोज हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। अब ये पोशा वेनिस से दूर रहती है, कुछ दूर पे रहती है। बेलमोंट नाम उस जगह का है जहाँ पर ये रहती है। बहुत अमीर है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी रिच, और जिनके फादर बीमार हैं, अब तक के मरने वाले हैं। और फादर को एक ही चिंता है कि मेरी बेटी ऐसे लड़के से शादी करे जो कि इसके दौलत से नहीं, मतलब इससे प्यार करे। और जितने भी लोग आते थे सब इसके दौलत को पर रीच करके आते थे। दे ऑल वांटेड टू मैरी हर फॉर मनी। इसलिए उसने एक तरकीब सोची थी कि कुछ ऐसा करें कि सही सही आदमी से शादी इसकी हो जाए। वो क्या तरकीब थी ये भी आप सुनेंगे बाद में, कि किस तरह से पोर्शिया परेशान हो जाती है उसके लिए,
ये कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा आप समझेंगे इस बाद में इस चीज को कि क्या प्लान बनाई थी पोर्शिया के फादर ने और कैसे ये प्रोग्राम ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं बसानियो जो कि बहुत अमीर नहीं है, ये भी मर्चेंट है लेकिन बहुत अमीर नहीं है। और बसानियो बेलमोंट जाता है बार बार और पैसा लेता है शार्लॉक एंटोनियो से, दोस्ती के मारे वो दे देता है। चलो जब भी कुछ कम ज्यादा हुआ तो फिर एंटोनियो उसको हेल्प कर देता है और उसको पैसे चाहिए होते हैं। अब किसी वो लड़की से शादी करना चाह रहा है तो इसके लिए भी उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बार बार जाता है और मिलता है पोर्शिया से। पोर्शिया में तो मैंने पहले बताई शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी वॉज वेरी रिच और एनीबडी वुड वांट टू मैरी, कोई भी उससे शादी करना एक सेकंड में चाहता था। ज्यादा लोग आते थे उसके पैसे के लिए, लेकिन वैसे बसानियों भी इसी कारण से गया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि धीरे धीरे उसको वो एक्चुअली ही स्टार्टेड लविंग हर, वो प्यार में उसका बदल गया उसका पैशन और दे वांटेड टू मैरी ईच अदर। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, एक दोस्ती है प्यार है पूरी कहानी तो जैसे हिंदी फिल्मों वाली कहानी है। गमी अमीर लड़की है, गरीब उतना भी लड़का रिच नहीं है और किस तरह से एक बाप परेशान हो जाता है कि लड़की शादी ऐसे लड़के से करे जो कि उसको प्यार करे ना कि उसके पैसे से प्यार करे। और एक विलन भी होता है हिंदी फिल्म में। तो बिल्कुल मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही दोस्ती पर आधारित है और प्यार तो है ही, प्यार है दोस्ती है हेट्रेड है बहुत कुछ, नफरत भी है बहुत कुछ है। तो कहानी पूरा हिंदी फिल्म की तरह ही है, तो ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी आप, बस नाम जान जाएंगे किसने क्या किया। तो ये देखिए बार बार जाता है बेलमोंट, बेलमोंट जगह जहाँ रहती थी पोर्शिया, और बार बार वेनिस से वो भागता है उसे मिलने के लिए और ही फॉल्स इन लव विद, दे फॉल इन लव विद ईच अदर। अब ये लड़की है इसका नाम नेरिसा। अब नेरिसा कौन है, नेरिसा पोर्शिया की दोस्त है। दोस्त थी, एक होती है ना कि हम उम्र मेड सर्वेंट थी और एक नौकरानी थी, लेकिन नौकरानी कम थी और उसकी कंपेनियन ज्यादा हो गई थी, उसकी दोस्त ज्यादा थी। और उसका मेरे से का यही काम था कि 24 घंटा इसके साथ रहना, और कंपेनियनशिप में उसकी इतनी दोस्ती हो गई थी कि वो हर राज वो बता देती थी नेरिसा को और नेरिसा का वो हर राज जानती थी। तो नेरिसा एक अच्छी लड़की है और सारे राज जानती है पोर्शिया के, और पोर्शिया को हर तरह से मदद करती है उसके साथ रह करके। कैसे मदद करती है भी आप आगे जानेंगे, फिर राज खुलेगा कि क्या क्या करती थी नेरिसा इसके लिए। जैसे ये यहाँ देखा आपने पोर्शिया और नेरिसा, आप पिक्चर में देख के समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सब राज जानती थी, चुलबुली थी, एक दूसरे से बातचीत करती थी, हंसी मजाक भी करती थी और बहुत क्लोज थी एक दूसरे से। तो शायला पोर्शिया एंड नेरिसा, नेरिसा हु वाज नेरिसा, नेरिसा वाज द मेड सर्वेंट ऑफ पोर्शिया और मेड सर्वेंट कम थी, उसकी दोस्त ज्यादा थी। अब एक और कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स बहुत सारे मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कैरेक्टर को आप अच्छी तरह से जानिएगा और जब तक कैरेक्टर नहीं जानिएगा कहानी नहीं समझ पाइएगा। तो ये जेसिका है। अब जेसिका कौन है, जेसिका शार्लॉक की बेटी है। अब कौन शार्लॉक, फिर भूल गए होंगे आप लोग, ये शार्लॉक जो बहुत ही क्रूअल था, जो कि मनी लेंडर था, जिसको सब लोग हेट करते थे। तो जेसिका कौन है, आप कैरेक्टर्स लिखते चले जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। जेसिका इज द डॉटर ऑफ शार्लॉक। शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल वाइज एंड चार्मिंग गर्ल। वो खूबसूरत भी है और होशियार भी है। वाइज का मतलब होशियार होता है, एंड अ चार्मिंग गर्ल, बहुत ही अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पोएटिकल नेचर। तो वो शायरी वगैरह भी करती थी, पोएटिक नेचर था उसका और सबको हंसती हंसाती भी रहती थी। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब कि सबको हंसना हंसाना और खुश रहा करती थी। तो ये कौन है, जेसिका है।
अब जेसिका तो जू है इसलिए शार्लोक की बेटी है, और जेसिका को अपने फादर से बिल्कुल बनती नहीं, वो जानती कि उसके फादर जो कुछ भी कर रहे हैं सही नहीं करते हैं, और जेसिका परेशान रहती थी और अपने बाप का घर किसी समय छोड़ने के लिए तैयार थी कि किसी समय हम छोड़ के हम चले जाएंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, एंड शी डिड नॉट लाइक हर फादर। अभी लॉरेंजो है, लॉरेंजो कौन है? अभी जेसिका है ना, जेसिका एक क्रिश्चियन को बहुत पसंद करती थी जिसका नाम था लॉरेंजो, ये भी क्रिश्चियन है, और लोरेंजो क्रिश्चियन है, और लोरेंजो भी बहुत अच्छा दोस्त अंटोनियो का है, अंटोनियो, बसानियो, लोरेंजो, ये सब दोस्त हैं, सब एक ही उम्र के हैं और सभी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। और शार्लोक की जो बेटी है, अब यहाँ पर स्टोरी का ट्विस्ट देख लीजिए, शार्लोक की बेटी जेसिका इज इन लव विद लोरेंजो जो कि क्रिश्चियन है, और ये तरकीब बनाते रहते हैं लोग कि कब हम अपने घर से भाग जाएं, अपने फादर से वो इतनी इतनी उब चुकी है, वो सोचती है कि उनके अत्याचार से दो जो वो लोगों पे कर रहे हैं वो कब छोड़ के हम भाग जाएं। ये बैठ के लोग प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से हम लोग क्या प्लान करें कि हम लोग चले जाएं। तो कितने पेयर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको? पोर्शिया, बसानियो, एक पेयर हुआ, ठीक है। सेकेंड इज लॉरेंजो एंड जेसिका, दूसरा कपल, ठीक है। तो जेसिका कौन है? शार्लोक की बेटी। लॉरेंजो कौन है? जिससे जेसिका प्यार करती है, शी लव्स हिम। याद है कि लोरेंजो एंड जेसिका मीटिंग at some place and they are planning कि कैसे घर छोड़ के चला जाए। अभी ग्राटियानो है, जितने भी बसानियो, एंटोनियो, ग्राटियानो, लोरेंजो, ये सारे के सारे दोस्त हैं, सारे के सारे फ्रेंड्स हैं और सारे क्रिश्चियंस हैं, कैरेक्टर्स हैं ये सब। नेरिसा एंड ग्राटियानो, यहाँ आप देख रहे हैं नेरिसा को, और ग्राटियानो कौन है? बसानियो का दोस्त है। अभी आपने देखा ना ग्राटियानो, अभी साथ साथ रहता था ये और बसानियो। तो जब बसानियो बेलमोंट जाता था तो ग्राटियानो भी साथ साथ जाता था उसके। ग्राटियानो क्यों जाता था? वो तो जाता था पोर्शिया से मिलने के लिए, ये किस लिए जाता था? ये भी जाता था उसके साथ साथ। वो क्या करता था? तो उसकी जो मेड थी, उसकी जो मेड जो फ्रेंड थी, नरिसा थी, तो ये उसके चक्कर में जाता था, नरिसा एंड ग्राटियानो। तो कपल नंबर 4 पेयर। तो बेलमोंट हमें जब ना तब बेलमोंट में बसानियो एंड ग्राटियानो चल देते थे। बेलमोंट क्यों? बसानियो यूज्ड टू गो टू मीट पोर्शिया एंड नेरिसा एंड ग्राटियानो मिलते मिलते एक दूसरे को लाइक करने लगे। तो ये रही नेरिसा एंड ये रहा ग्राटियानो। तो ग्राटियानो कौन है? फ्रेंड ऑफ नेरिसा, अ वेरी टॉकेटिव एंड विटी मैन। जो ग्राटियानो बहुत बकझक करने वाला, बक बक करता था, वेरी टॉकेटिव एंड विटी, मतलब बहुत ही स्पष्ट बोलने वाला, और विटी का मतलब होता है कि हाजिर जवाब था, और कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से बोलता था, फौरन कुछ बोल देता था। तो कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी होती है, दे आर वेरी विटी, तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है। और ये इतनी सीरियस प्ले में, इतना सीरियस जो है, इसमें लव भी है और कुछ मजाक भी है, कुछ हंसी मजाक भी है, तो ये सब कुछ फन डाल देते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अब पहला नाम जो आता है इसमें ग्राटियानो का, तो ग्राटियानो उस तरह का था लड़का जो कि
फ्रेंड ऑफ बसानियो का, बहुत क्लोज फ्रेंड था और बसानियो के साथ साथ बना रहता था। एंड नेरेसा कौन है? शी इज द वेटिंग मेड ऑफ पोर्शिया बट मोर ऑफ अ कंपेनियन देन अ मेड सर्वेंट। तो वेटिंग मेड का कहा जाता है कि उसकी सर्वेंट थी वो, शी वाज अ मेड सर्वेंट ऑफ पोर्शिया एंड शी वाज मोर देन अ मेड सर्वेंट, मतलब जो कि सारे राज जानती थी, उसकी कंपेनियन थी। So what is something new about them? So Bassanio's friend Gratiano and Portia's maid Nerissa, they both fall in love with each other. This is common. कैरेक्टर्स जानेंगे तो कहानी भी जान जाएंगे। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा मच समझ क्या है, क्या ये गोर मट्टा है, क्या चल रहा है। तो इतने कैरेक्टर्स, इतने लोग और इतना ताना बाना, इतना इधर से उधर, उधर से उधर, सब एक दूसरे को जानते। कॉमन प्लेस एंटोनियो है, सबके सबसे बीच में जो है वो एंटोनियो है, और एंटोनियो की उदासी है, वो क्यों उदास है ये बाद में आप जानेंगे। ये लॉन्सलॉट गॉब्बो है। लॉन्सलॉट गॉब्बो ये एक सर्वेंट था जो कि शार्लॉक का सर्वेंट था। अब कौन शार्लॉक, फिर से दिखा देते हैं, समझ गए होंगे शार्लॉक, बार बार नाम आ मनी रहा लेंडर मैम, है। शाइलॉक इज अ मनी लेंडर। यस, बार बार मुझे दिखाने की जरूरत पड़ जाती है इसलिए कि नेम्स बहुत अजीब 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 नेम्स है ना आपके। तो लॉन्सलॉट, तो पहले ये शार्लॉक जो मनी लेंडर था, हाँ ठीक बोला आपने, तो उसका ये नौकर था, लेकिन उसके अत्याचार से फेडअप हो गया था, वहां से वो भाग निकला, भाग खड़ा हुआ और किसका नौकर बन गया करके, और वो चला आया और वो बन जाता है अंटोनियो का नौकर। पहले बसानियो का नौकर बना, फिर अंटोनियो का नौकर बना। और ये जब भाग आया तो इसका जो फादर था, अब कैसे गांव में फादर रहते हैं और बेटे को शहर नौकरी करने के लिए कई नौकर भेज देते हैं, है कि नहीं, अभी बाद में पूछने जाते हैं कि मेरा बेटा ठीक ठाक से है कि नहीं। तो इसे जब इसके फादर जो कि ब्लाइंड थे, ओल्ड गॉबो, उसका नाम ओल्ड गॉबो, उसका भी कैरेक्टर आएगा। ओल्ड गॉबो परेशान हो गया कि बेटा कहाँ है, लॉन्सलॉट गॉबो कहाँ चला गया। तो शार्लॉक बोला कि मुझे नहीं पता, एक दिन वो भाग गया घर से। अब पूरे शहर में, पूरे वेनिस में, अब ओल्ड गॉबो बेचारे ब्लाइंड, और वो ढूंढ रहे कि बेटा मेरा कहाँ है, और ये तो छुप के बैठा हुआ था, किसी और का नौकर बन गया था। ये भी एक कैरेक्टर है जो कि कार्टून कैरेक्टर है एकदम। अब ये रहा ओल्ड गॉबो जो इनका बाप है। ये जो सर्वेंट है शार्लॉक का था, मतलब अभी नहीं है, अब तो किसी और का है, और ये बेचारा ब्लाइंड है और ये बहुत परेशान है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। और लोग हैं जो कैरेक्टर में है, नाम उनका आता है, जैसे बाल्थासार, ये भी पोर्शिया का मैसेंजर है, सर्वेंट है, मतलब पत्रवाहक, यहाँ से वहां कुछ ले जाओ, वहां से वहां कुछ ले जाओ। तो पोर्शिया का मैसेंजर है ये, पोर्शिया का सर्वेंट भी समझिए। अब ये सब सीन कोर्ट सीन का है। अब एक कोर्ट सीन था जिसमें वो अंटोनियो को बचाने के लिए बहुत कुछ करती है पोर्शिया, जिसमें भेष बदल के आती है, लॉयर का भेष बदल के आती है और बचा लेती है अंटोनियो को। कहानी क्या है वो तो अभी आप कैरेक्टर्स ही जान रहे हैं, तो फोटो आगे से बता रहे हैं कि ये इस भेष में पोर्शिया है, क्यों लड़के के भेष में क्यों है, वो भेष बदल के आई थी अंटोनियो की जान बचाने के लिए। लेट मी डील द स्लाइड्स, फिर आपको कहानी हम समझा देंगे। अब ये आइए प्रिंस ऑफ मोरक्को। कैरेक्टर प्रिंस ऑफ मोरक्को वो हैं जो कि शक्ल से आप देख ही रहे हैं कैसे हैं, और डार्क भी हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है कि मेरी शक्ल जो भी है, लेकिन ये चाहते हैं शादी करना किससे, पोर्शिया से। यस है। हाँ, तो ये चाहते हैं शादी करना, और क्या डील रखी थी वो तो बाद में जानिएगा। एक कैरेक्टर है जो कि पोर्शिया से शादी करना चाह रहे थे। यस बट पोर्शिया लाइक करता होगा मैम। पोर्शिया लाइक करती थी, बताने अब आसानी हुआ, ये भी आता है स्वयंवर में,
चूज करना होता है कौन सा कैस्केट छूना है, तो बसानियो भी थे उसमें। तो पहला तो था प्रिंस ऑफ पैरागॉन था, सॉरी प्रिंस ऑफ मोरक्को था। 3 डिब्बे रखे हुए थे, 3 बास्केट रखा हुआ था, लकड़ी का बास्केट, जैसा कि प्लान बना था। उस प्लान के बारे में बाद में समझेंगे आप, अभी कैरेक्टर जान गए। तो 3 जो बचे हुए रह गए थे वो स्वयंवर में, वो थे पहला प्रिंस ऑफ मोरक्को, दूसरा प्रिंस ऑफ एरागोन एंड तीसरा बसानियो। अब जाहिर सी बात है बसानियो ही जीते होंगे। ये एपिसोड क्या है, सीरियस एपिसोड है जिसको आपको लिखना भी पड़ता है एग्जाम में। अब ये रहा 3 कास्केट। अब ये 3 कास्केट की कहानी सुन लीजिए। ये व्हाट वाज द एपिसोड ऑफ 3 कास्केट्स। तो जैसा कि हमने बताया था, जेसिका के जो सॉरी पोर्शिया के फादर बहुत परेशान रहते थे, बीमार रहते थे, और अब तक की उनकी हालत थी। और परेशान क्यों थे? इसलिए कि बेटी की शादी चाहते थे ऐसे लड़के से करना जो कि उसको प्यार करता हो। तो उन्होंने एक युक्ति बनाई और 3 लकड़ी का कास्केट, कास्केट का मतलब होता है वुडन बॉक्स, अब देख रहे 3 बास्केट है ना। तो ये 3 कास्केट में क्या क्या था? अब उनका ये सोच था कि जो भी सही कास्केट चुनेगा शादी उसी से होगी पोर्शिया की। तो पहले में क्या था, एक में गोल्ड था, एक में अंदर गोल्ड था, एक में अंदर सिल्वर था, सॉरी सिल्वर था नहीं, एक गोल्ड था, गोल्ड सिल्वर और एक लेड था। तो गोल्ड में जो चुनेगा वो पोर्शिया शादी उससे नहीं करेगी, इसलिए कि उसको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, खाली पैसा चाहिए। तो जो इस पर हाथ रखेगा वो तो छड़ गया ऐसे ही। अच्छा, सिल्वर में लिखा हुआ था कि तुमको तो ना तो तुम जो हो तुमको वैसे ही मिलेगा, मतलब तुमको तो न पैसा कमाना है न पैसा मिलना है, तुम जिस लायक हो तुमको वही मिलेगा, मतलब तुम इस लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके अंदर था एक इडियट का फोटो, जैसे ही खोलता है वो इडियट का फोटो सामने रहता है। तो दोनों तो छट ही गए, आराम से छट गए। तो 3 कास्केट का, एक गोल्ड एक सिल्वर और एक था लेड। लेड में था पोर्शिया का पोर्ट्रेट, मतलब पोर्शिया का बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट था, एक पिक्चर था पोर्शिया का। तो जिसमें लिखा हुआ था कि तुमको जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। अब ये 3 जो हैं, इसने भी गलत चूज किया, इसने भी गलत चूज किया, ये सिल्वर चूज किया, ये गोल्ड चीज किया, छट गया, ये भी छट गया। और बस्तानी को पता नहीं था कि इसमें थर्ड वाले में क्या है, वो भी जाने लगा जब ये दोनों उठ के चल दिए। अच्छा, ये भी शर्त थी कि तुम अगर रॉन्ग बास्केट चुनोगे, रॉन्ग कास्केट चुनोगे, तो तुमको जिंदगी में कभी शादी नहीं करनी होगी, रन करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो छट गए। ये दोनों को जाते देख ये भी सोचा कि हम चलते बने हम भी। जब एक से एक दिग्गज दिग्गज लोग को कुछ हाथ में हासिल नहीं हुआ, देन इवन आई शुड लीव। तब ये जाने को निकल लिया था, तभी उसको मेरिसा और पोर्शिया उसको इशारा करती है रुकने के लिए। और तब उसने ये चूज किया, ये कास्केट जिसमें पोर्शिया की क्या था, फोटो। फोटो था। तो जैसे ही राइट कास्केट सही कास्केट चुन लेता है, तो ये कास्केट चुन लेता है, ये दोनों तो छट के अलग हो गए और बसानियों के जिम्मे ये आया जो कि उसको सही कास्केट चुना। और तो कोई था ही नहीं ना, 3 ही था। तो फिर इसको चूज करते ही दोनों की शादी लगभग वहीं पे फिक्स हो गई।
तो मैरिज वाज फिक्स वहीं पे। अभी एपिसोड है, कास्केट एपिसोड क्या होता है? तो ये 3 कास्केट समझ में आ गया। Yes. तो गोल्ड कैस्केट में क्या लिखा हुआ था कि जो इसको चूज करेगा, who chooses me shall gain what many men desire, मतलब लोग को सिर्फ पैसा चाहिए। तो गोल्ड कैस्केट का मतलब यही हुआ था, जो हमको चूज करेगा वो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। सिल्वर जो चूज करेगा उसमें लिखा हुआ था, जो जिसने मुझे चूज किया है उसको मिलेगा एज इट डिजर्व, वो जिस लायक है उसको वैसे ही मिलेगा, जिसके अंदर एक इडियट का फोटो था। एंड थर्ड कास्ट, who chooseth me must give and hazard all he hath, मतलब कि जो मुझे चूज करेगा वो उसको जिंदगी में सारा कुछ मिलेगा। must give and hazard all he hath, मतलब वो सब कुछ उसका हो जाएगा। और मतलब द राइट कास्केट यही हुआ। तो ये कास्केट एपिसोड था मर्चेंट ऑफ वेनिस का। आज के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं। So this was the casket episode. कहानी कितना समझ में आया आप लोगों को? मैम कैरेक्टर सबको लगभग समझ में आ गया। कैरेक्टर समझ गए तो कहानी भी समझ गए। यस मैम। कहानी ऐसा कुछ नहीं है, बस फ्रेंडशिप की कहानी है, दोस्ती की कहानी है, लव की कहानी है, बेसिकली फ्रेंडशिप के लिए। और अभी तो मेन चीज आप जाने नहीं है कि शार्लॉक का डील क्या था और किस तरह का उन्होंने डील बनाया था, और जो पूरी कहानी चल रही है उस शार्लॉक की डील पे। तो प्ले थोड़ा लंबा है, लेकिन हम सोचे कैस्केड पहले आपको समझा दे कि कैरेक्टर्स क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही।